Good morning, students. Today we will continue the chapter number 5 using the keyboard. So let's start. Students, in previous lecture we have learned about different type of keys of keyboard, right? उसमें हमने पहले alphabet keys, then number keys and then special keys के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हमने we have covered the topic alphabet keys, right? Today we will cover number keys and special keys. So let's start. Okay, first we will do number keys. Students, what are number keys? Number keys are used to type numbers. What are numbers? 0 to 9, which are present on a keyboard. You can see keyboard के top part पे after the function keys numbers provided रहते हैं, ठीक है? Number are present here. And some keyboards में at the right side एक num lock keypad होता है, ठीक है? जिसमें वही same numbers होते हैं 0 to 9. Right? You can see here I have shown the keyboard's num lock keypad जिसमें ये नंबर प्रेजेंट रहते हैं. Okay? So next, yes, the special keys. Special keys are used for some specific work. ठीक है? I will explain you some of the special keys which are shown below. Let's read first. First is spacebar key. Students, I will show you the special keys here and then we will learn about these special keys one by one. Okay? So, this is the spacebar key on the keyboard. Right? Next is enter key. Students, we have two enter keys in a keyboard, right? First with the alphabet keys you can see, and second with the num lock keypad at the right bottom corner, right? So next is arrow keys. Arrow keys, here are the arrow keys, right? Next is delete key. Students, there are two delete keys also on a keyboard. First you can see near the enter key and the second is with the num lock keypad. ये two delete keys क्यों दी हैं? क्योंकि in some keyboards the num lock keypad are not present. That means num lock keypad कुछ keyboards में provided नहीं रहता है. Okay. Next is backspace key. Yes, here is the backspace key. Right? So let's learn about these special keys कि इनका क्या काम है. One by one. Let's read. Okay, first we will read about space bar key. Students, जब हम कोई सेंटेंस नोटबुक पे लिखते हैं like this is a book, तो after writing this हम एक स्पेस देते हैं ना, कुछ स्पेस छोड़ के फिर is लिखते हैं. सेम विद इन द केस ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर में कीबोर्ड के ऊपर एक स्पेस बार की लगी होती है, ठीक है? तो ये किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है? ब्लैंक स्पेस देने के लिए, खाली स्पेस छोड़ने के लिए, चाहे वो लेटर्स के बीच में हो, वर्ड्स के या नंबर्स के बीच में, ठीक है? लेट्स रीड अबाउट इट. द स्पेस बार की इज यूज्ड टू ऐड ब्लैंक स्पेसेस between letters, words and numbers. It is the longest key on the keyboard. Remember this thing, okay? ये सबसे लंबी की होती है कीबोर्ड की, right? Next, to type my bag with a space.
in between the two words my and back. ठीक है, we have to press space bar key. Let's do the practical in this. Okay, so this is the space bar key I have shown. Suppose I have to write in this text box my bag. I will type M, then Y, then I will press the space bar key. Okay, then I will again type B, then A, then G. So this is how my and back के बीच में एक blank space होगा by pressing the space bar key. Okay, so let's do next. Okay, this is enter key. Students, जब हमने एक सेंटेंस लिख लिया दिस इज अ बुक, ओके, अब नेक्स्ट लाइन में जब हम जाएंगे तो हम पेंसिल से तो हम नेक्स्ट लाइन में अपने आप चले जाते हैं ना, बट कंप्यूटर में कैसे जाएंगे नेक्स्ट लाइन में? बाय प्रेसिंग एंटर की, यस, विच विल जम्प आवर कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन, है ना? सो लेट्स रीड. द एंटर की is pressed to jump the cursor to the next line. Okay, there are two enter keys on a keyboard. I have shown you two enter keys. One with the alphabet keys near the alphabet keys and the second in the numlock keypad. है ना? Okay, so to type tree and fruit in separate lines. ठीक है, इसमें इन्होंने कहा है कि हमें ट्री एंड फ्रूट डिफरेंट लाइंस में लिखना है. मीन्स एक ट्री हमने एक लाइन में, देन फ्रूट हमने सेकंड लाइन में लिखना है. ठीक है, व्हाट वी विल डू इज वी विल टाइप TREE, देन वी विल प्रेस एंटर की. ठीक है, वी विल प्रेस एंटर की एंड देन वी विल टाइप FRUIT इन द नेक्स्ट लाइन. ओके, क्योंकि जब हम एंटर की प्रेस करेंगे तो कर्सर अपने आप सेकेंड लाइन में जंप कर लेगा. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज यस एरो कीज. व्हाट आर एरो कीज? ओके, लेट्स रीड. ओके, यू कैन मूव द कर्सर अप, डाउन, लेफ्ट एंड राइट ऑन द मॉनिटर. मॉनिटर की स्क्रीन पे अगर आपने अपने कर्सर को डॉक्यूमेंट एरिया में जो कर्सर प्रोवाइडेड रहता है उसको आपने ऊपर लेके जाना है, दैट मीन्स अप. नीचे लेके जाना है, दैट मीन्स डाउन. लेफ्ट साइड लेके जाना है या राइट साइड लेके जाना है. तो वी विल डू दिस विद द हेल्प ऑफ एरो कीज. सी, दिस इज द अप साइड कर्सर. ओके, अप एरो. दिस इज द डाउन एरो की. दिस इज द लेफ्ट एरो की एंड yes, this is right arrow key. Okay, students, see, in this I have shown you in this animation the arrow keys. Okay, let's do next backspace key. What is backspace key? backspace होता है जहाँ पे हमारा कर्सर है, ठीक है, उसकी लेफ्ट साइड का कोई भी अल्फ़ाबेट, नंबर या सिंबल हमें इरेज करना है. अब नोटबुक में तो हम इरेज़र की हेल्प से कोई भी वर्ड, नंबर इरेज करते हैं, राइट. बट कंप्यूटर में हमें लेफ्ट साइड के अल्फ़ाबेट, नंबर या सिंबल को इरेज करने के लिए बैकस्पेस प्रेस करना होता है एंड राइट साइड के कोई भी अल्फ़ाबेट, नंबर या सिंबल को इरेज करने के लिए डिलीट की यूज़ करना होता है. इसके बाद हमें वो करेंगे, ठीक है, डिलीट की करेंगे. पहले हम बैकस्पेस की करेंगे कि हमें कर्सर के लेफ्ट साइड वाला वर्ड या लेटर कैसे डिलीट करना है या कैसे इरेज करना है. ठीक है, चलिए लेट्स रीड. द बैकस्पेस की इज यूज्ड टू इरेज एनीथिंग टाइप टू द left of the cursor. It erases one letter at a time. ये एक टाइम पे एक ही लेटर इरेज करता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टू करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ कंप्यूटर,
यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर, बट इट इज wrongly spelled, right? The right answer is computer. We have to follow these steps to correct it. Okay. So we can see in this video, I have do the practical of this. You can see I have write 2 times computer and computer. The second one is right. When my cursor is on the second T, after the second T, I have erased the, when I press the backspace, it will erase the second T. Okay. Next, we have delete key. See, here is the animation delete key. The delete key is used to erase anything typed to the right side of the cursor. Okay. पहले हमने बैकस्पेस किया था जो लेफ्ट साइड के लेटर को इरेज करता है, बट डिलीट की क्या करता है, राइट साइड पे जो भी कर्सर के राइट साइड पे लेटर होगा उसे इरेज करता है, राइट? सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ वीडियो व्हाट आई हैव डन इन दिस इज, यू कैन सी यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म. अब मुझे ई इरेज करना है, तो मैं जब डिलीट की प्रेस करूंगी तो ई इरेज हो जाएगा, बिकॉज ई वाज ऑन द राइट साइड ऑफ द कर्सर, है ना? ओके. सो नेक्स्ट इज एक्सरसाइज. लेट्स रिव्यू. लेट्स डू इट. ओके. इसमें आपको बताना है कि ये कौन सा वर्ड है, क्या काम करता है. हु एम आई. ठीक है, तो लेट्स रीड. फर्स्ट इज आई लेट यू जम्प टू द नेक्स्ट लाइन. यस, एंटर की. अभी हमने किया ना एंटर की. जब हम प्रेस करते हैं तो कर्सर हमारा नेक्स्ट लाइन में जंप कर जाता है ना? ओके. नेक्स्ट इज नंबर 2. वी अलाउ यू टू मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस. एरो कीज. एरो कीज हम जब लेफ्ट या राइट या अप या डाउन जाना होता है, डिफरेंट डायरेक्शंस हो गई ना वो, तो उसको करने के लिए हमें एरो कीज की नीड होती है, राइट? यस. नेक्स्ट नंबर 3. प्रेसिंग मी एड्स ब्लैंक स्पेसेस. ये स्पेस बार की. स्पेस बार की से ही हम ब्लैंक स्पेस कर पाते हैं ना, ब्लैंक स्पेसेस दे पाते हैं अपने सेंटेंसेस में या अपने लेटर्स के बीच में, वर्ड्स के बीच में, है ना? यस. तो वी यूज space bar keys to add blank spaces, है ना? Okay. Number 4 is we work like erasers. तो हमें पता है कि यहाँ पे तो 2 कीज होती हैं जो इरेज कर सकती हैं. कर्सर के लेफ्ट साइड का, that is backspace. Sorry, here is written delete की. यह है कर्सर के राइट साइड का कोई भी लेटर डिलीट करने के लिए या इरेज करने के लिए डिलीट की यूज करते हैं, और लेफ्ट साइड के लेटर या सिंबल्स को बैक स्पेस की यूज करते हैं, है ना? यू हैव टू रिमेंबर द बोथ ऑफ द थिंग्स. कर्सर के लेफ्ट साइड को अगर आपने कुछ भी इरेज करना है तो आप बैक स्पेस की यूज करोगे, और कर्सर के राइट साइड का कुछ भी डिलीट करना है या इरेज करना है तो यू विल यूज डिलीट की. ओके. सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू practice all these keys. Okay. So students, we have completed our chapter today, right? Then in next lecture we will do the exercise. Okay. Till then, take care. Bye bye. Thank you.